Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, Aditya. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, Good teacher. morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Teacher. Good morning, teacher. Morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. We will learn about what is a computer and your hardware, softwares, and your operating systems. Yes, so now we will start. So now, first, what is a computer? You all are very well known about your computers. A computer is an electronic device that uses information or data. It has the ability to store, retrieve, and process data. You can use a computer to type documents, see videos, listen sounds, send email, and browse the web. You can also use it to handle various applications useful for day-to-day life. So what is a computer? Computer is an electronic device and it's used for the information and you store the data. So computer is a very important to your day-to-day life. The required data to us. Okay, so the most important thing which the computer does is storing, retrieving, and processing the data. Okay, and what other things you will get? You can use a computer to type the documents, see videos, listen sounds, send emails, and browse web. Okay, so or come abhi when you will go. Okay, we can say only this standard only you will be learning how to send emails. Okay, emails, that is a kind of messages, and how to use the web browser, that is internet, how you are going to use all these things you are going to learn, which is being possible using the computer. Okay, you can also use it to handle various applications for your day to day life में हम लोग कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? For example, you want to we can say now you are attending your online lectures. How you are attending? Some are attending the online lectures using the computer. Okay, so we can say computer is useful, or there are other applications जो भी IT professionalist हो गए या फिर teachers हो गए at present, all of them are working and using certain applications for their day-to-day life.
Now ENIAC, that is nothing but electronic numerical integrator, and the computer was developed in 1946. ठीक है, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का फर्स्ट स्टार्ट या फिर डेवलपमेंट कभी हुआ था, 1946. It took 1800 square feet and weighed 30 tons. मतलब जब भी फर्स्ट कंप्यूटर फाइंड आउट किया था, ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर जब भी फाइंड आउट किया था तभी उसने कितना स्पेस लिया था. अभी का तुम लोग का कंप्यूटर कितना स्पेस लेता है, ज्यादा से ज्यादा एक टेबल या फिर एक स्टूल, इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है. बट व्हेन इट वाज डेवलप्ड, ओके, व्हेन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड, इट यूज्ड टू टेक अ होल हाउस, तुम लोग का पूरा घर, वो भी हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम 640 स्क्वायर फीट रहता है, बट इट यूज्ड टू टेक 1800 स्क्वायर फीट. उतना एरिया ऑक्यूपाई करता था, उतना बड़ा कंप्यूटर था. एंड उसका वेट कितना होता था, 30 टन्स. ठीक है, 30 टन्स वेट उसका होता था. सो इट यूज्ड टू बी वेरी हैवी. Okay, and it used to occupy a lot of space. So the computer was not easier at that time to handle. Okay, now the computer which you are seeing, okay, you have seen the images in third standard also. ठीक है, हम लोग ने जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स लास्ट टाइम किया था तभी they have showed a image, छोटा इमेज था आपके आईमैक्स में, तभी आपने देखा रहेगा कि कितना बड़ा कंप्यूटर है. Even teachers have shown you the videos about how the computers actually look. So such thing, such a huge development, and now you can see the latest one which you can carry in your palm also. Okay, so the development has reached to this level. There are certain modern parts. ठीक है, अभी के जो कंप्यूटर है उसमें आपको मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स एंड दी माइक, ये सब तुम लोग को दिखता है. बट initially it was not the case. They used to have a very big systems. Okay, so I hope this is clear how the computer used to be there. There are certain generation, first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation computer. Okay, first generation computers में उनको बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेटेड चिप से किया. नाउ जो भी हम लोग यूज कर रहे, दे आर नथिंग बट द फिफ्थ जनरेशन, और वी कैन से एज अ मॉडर्न कंप्यूटर्स. Fine. Okay. I hope computer के बारे में you have got a clear idea. Now the next most important thing is computer learn किया. Now what are the hardware and the software? Now hardware and software, again very important part. Hardware is nothing but one which you can touch and see. ठीक है, touch and you can feel it, right? Like for example, monitor, you can touch and you can feel, yes, this is the screen, this is the thing. Okay, so that those part, yeah, we can say as a physical components are nothing but the hardware. Okay, the one which can be seen and touched, जो भी हम लोग देख सकते हैं. Now you will see, say कि CPU है, CPU के अंदर के parts जो है, like for example hard disk हो, floppy drive हो, जो भी है, that we cannot see. But if we open the CPU, we can see it and we can feel it. So those things also comes under the hardware part. Okay, so hardware part examples क्या है, कीबोर्ड, माउस. आउटपुट डिवाइसेस में क्या आएगा, प्रिंटर एंड मॉनिटर. इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस. एंड सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है, हार्ड डिस्क, CD and DVD. Now what are the hardware parts? The things which you are seeing here. ठीक है, ये जो इमेज में दिख रहा है आपको, printer, monitor, CPU, speaker, everything comes under the hardware. Okay, so hardware is the one which is the physical component and the one which you can see, which you can touch and feel, right? Now what are the software? Software जो
कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जो कंप्यूटर के अंदर है, या फिर वी कैन से एप्लीकेशंस, ठीक है। तुम लोग कंप्यूटर चालू किया, तुम लोग को अभी टाइप करना है, तो तुम लोग क्या करोगे, यू ओपन सर्टन एप्लीकेशंस, राइट, या फिर तुम लोग वर्ड ओपन करोगे, या फिर तुम लोग वर्ड पैड यूज करोगे, या फिर तुम लोग नोट पैड यूज करोगे। सो कुछ तो एक इंटरफेस यूज करोगे जिसमें आप टाइपिंग करोगे, राइट। So such interfaces or such platforms or such applications are nothing but the software. अंडरस्टूड। जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विथ एग्जाम्पल ऑफ योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आई होप सब लोग ने यूज किया है, राइट, कोई भी ऐसा नहीं है जो मोबाइल फोन नहीं यूज किया। अभी मोबाइल में तुम लोग देख सकते हो द स्क्रीन, द डिस्प्ले, तुम लोग का मोबाइल फोन, ये सब जो भी बाहर तुम लोग को दिख रहा है, दैट आर नथिंग बट दी हार्डवेयर पार्ट। मोबाइल का बैटरी, मोबाइल के बटन्स, देन व्हाट वी कैन से सिम कार्ड, ये सब क्या हो गया, हार्डवेयर पार्ट हो गया। अभी सॉफ्टवेयर क्या हो गया, तुम लोग मोबाइल के अंदर, तुम लोग ने अभी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, राइट, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, कोई गेम तुम लोग ने डाउनलोड किया होगा, व्हाट्सएप, मैसेंजर, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस रहते हैं, वो सब तुम लोग ने डाउनलोड किया होगा। सो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। अंडरस्टूड? Okay, I hope the hardware and the software part is clear. Now software is nothing but a set of program which is designed to perform a well-defined function. Okay, now I have said what is inside the computer. The applications which are there in the computer are nothing but the software. Now there are two types of software: system software and the application software. What are the two types of software? Hardware doesn't have any part, ठीक है, सब डिविजन्स नहीं है, बट सॉफ्टवेयर का सब डिविजन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बताते हो, ठीक है। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द अदर सॉफ्टवेयर। मतलब तुम लोग को मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल तुम लोग ने मोबाइल यूज किया, अगर तुम लोग के मोबाइल में एंड्रॉइड, सब लोग ने सुना रहेगा, राइट, एंड्रॉइड, या फिर जिसके पास आईफोन है उन्होंने iOS सुना रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर्स जिसके पास है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सुना रहेगा, या फिर विंडोज सुना रहेगा, या फिर मैक ओएस सुना रहेगा, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट द वन विदाउट विच योर कंप्यूटर इज यूजलेस। अगर एंड्रॉइड करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग ने डाला नहीं मोबाइल फोन्स में, तो हम लोग का मोबाइल फोन यूज नहीं होगा, या फिर हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो पहले आपके कंप्यूटर हो या फिर आपके मोबाइल हो उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर वो इंस्टॉल करेंगे तो ही हम लोग बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। Okay, so software is divided into two parts: system software and the application software. Okay, now system software is a very important, because without system software, without uploading or without installing a system software, we cannot do anything or we cannot download any application software. ठीक है, तुम लोग अगर पीसी चालू कर रहे हो तो तुम लोग को पहले ऐसे लोडिंग दिखता है, ठीक है, बफरिंग दिखता है, स्टार्टिंग दिखता है, वो क्या होता है, फिर विंडोज का एक आइकन दिखता है। सो दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग लोडेड। अंडरस्टूड? सो तुम लोग का क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तुम लोग मोबाइल रीबूट कर रहे हो, ठीक है, या फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर रहे हो, तो तुम लोग को दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग माई रेडमी, ठीक है, रेडमी चालू होगा या फिर MI ऐसे चालू होगा, उसके बाद वो एंड्रॉइड करके दिखाएगा। दैट मीन्स योर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अपलोडिंग या फिर लोडिंग। फाइन, अंडरस्टूड? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा तुम लोग का, टैली,
कोरल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, टिकट रिजर्वेशन, एक एग्जांपल है। मैं तुम लोग को बता दूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या है। तुम लोग का गेम है, समझो कोई भी तुम लोग ने एक गेम डाउनलोड किया, फॉर एग्जांपल कैंडी क्रश, ठीक है, ये कैंडी क्रश एक डाउनलोड किया तुम लोग ने, तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। या फिर मैं बोल रही हूँ डोरेमोन का एक कार्टून डाउनलोड किया, सो दैट बिकम्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तुम लोग ने एक कैमरा डाउनलोड किया, ठीक है, ब्यूटी प्लस डाउनलोड किया, सो दैट बिकम्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। या फिर तुम लोग ने एक बुक डाउनलोड किया, ठीक है, Amazon Kindle का एक बुक डाउनलोड किया, सो दैट बिकम्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड? सिस्टम सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट डाउनलोड, ठीक है, वो इनबिल्ड आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू कैन डाउनलोड एज मच एज यू वांट। सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिर्फ अपडेट किया जाता है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू कैन डाउनलोड इट हाउ मच यू वांट, जितना आपका स्पेस है उतना आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप द hardware and the software is clear. See here the images is showing you the difference. क्या क्या है यहाँ पे देखो, डिवाइसेस दिया है, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, व्हाट इज दिस, रीडर, ओके, वी कैन से इट एज अ लिंक, टीपी लिंक, या फिर डी लिंक बोल सकते हैं हम लोग उसको, हार्डवेयर, साउंड कार्ड, बीबी कार्ड, व्हाट इज दिस, रैम, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, मेन, मदरबोर्ड, DVD ROM drive, then the power supply, everything comes under the हार्डवेयर पार्ट। अभी यहाँ पे देखो, तुम लोग को ये सब तुम लोग ने मोस्ट ऑफ द थिंग इसमें का तुम लोग ने देखा रहेगा, राइट? मोजिला फायरफॉक्स, यूटोरेंट, ओके, याहू, देन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ड्राइव, सॉरी गूगल क्रोम, VLC, so these all comes under the software. Okay, I hope the hardware and the software is clear. Is it clear? Just let me know. उसके बाद हम लोग को आगे का करना है, रिलेशन बिटवीन दी सॉफ्टवेयर एंड दी हार्डवेयर। आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड यू व्हाट आर दी रिलेशन बिटवीन दी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, मैं बता रही हूँ अभी क्लियर। अ हार्डवेयर इज नथिंग बट अ heart of the computer, then software is a soul. Both are complementary to each other. Okay, hardware and software are mutually dependent on each other. Both of them must work together to make a computer produce a useful output. Software cannot be utilized without supporting hardware. To get a particular job done on the computer, relevant software should be loaded into the hardware. Hardware is one-time expenses, while software development is expensive and is a continuous expense. Different software applications can be loaded on a hardware to run different jobs. ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का theoretical base. Now I will tell you what is actual relationship between a hardware and software. Now hardware and software. For example, you are having the CDs of सॉफ्टवेयर, तुम लोग के पास सब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और तुम लोग के पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है मतलब तुम लोग के पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर का यूज होगा क्या? या फिर तुम लोग के पास हार्डवेयर है, तुम लोग के पास कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कंप्यूटर है मतलब मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, एंड यू आर हैविंग एवरीथिंग, ठीक है, बट तुम लोग की पीसी में तुम लोग ने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है और तुम लोग ने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, तो तुम लोग का कंप्यूटर का यूज होगा क्या? नहीं होगा। सो it is complementary to each other, it gives complementary to each other. मतलब अगर तुम लोग हार्डवेयर है तुम लोग के पास, so it is needed to install the software. अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है बट आपके पास मोबाइल फोन ही नहीं है, तो तुम लोग का यूज होगा क्या उस सॉफ्टवेयर का? नो। या फिर तुम लोग के पास
कंप्यूटर ही नहीं है बट सॉफ्टवेयर है, सो इट इज ऑफ नो यूज. इफ यू वांट योर कंप्यूटर, if you want your software to be installed in your computer, so you need a hardware part, that is you need your computer. If you want your computer to run smoothly, या फिर तुम लोग का कंप्यूटर चालू होना चाहिए, तो तुम लोग को क्या लगेगा? सॉफ्टवेयर लगेगा. अंडरस्टूड? एक दूसरे के बिना ये लोग वर्क नहीं करेंगे. तुम लोग के पास सॉफ्टवेयर रहेगा बट तुम लोग के पास हार्डवेयर नहीं रहेगा, तो तुम लोग का कंप्यूटर यूज नहीं होगा. तुम लोग के पास हार्डवेयर है बट तुम लोग ने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, तो अगेन योर कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू वर्क. Okay, before starting with the operating system, I need to ask, is the doubts clear? Are you having any doubt? Are you having any doubt? Is it clear about the hardware, software? Okay, so next part is nothing but the operating system. Now, operating system are nothing but, मैंने तुम लोग को बताया, software are nothing but of two and the application software, ठीक है, and your hardware. Okay, now system software comes and जो भी system software है उसके अंदर आपका operating system आता है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आर नथिंग बट योर विंडोज, या फिर तुम लोग एंड्रॉइड भी बोल सकते हो. तो जो भी तुम लोग का एंड्रॉइड रहता है, दैट कम्स अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम. Now, what is an operating system? Operating system is the most important software that runs on the computer. It manages the computer memory process and all of its software and hardware. It allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer language. Without an operating system, a computer is useless. As I have already stated, a system software के बिना तुम लोग का कंप्यूटर का यूज नहीं है. ओके, जब तक आप सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हो कंप्यूटर के अंदर, बाकी के तुम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओएस भी बोल सकते हैं. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसके बिना तुम लोग का कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फोन हो उसका यूज नहीं है. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओएस. Okay, so without operating system या फिर without OS, we cannot use our computer, or we can say our computer or our mobile phones are useless without a operating system. ठीक है, so operating system is the main device, or we can say main software with which helps us to communicate, which helps us to save our data. जो भी अपने memory process होते हैं, everything are looked after the are looked by the operating system. Okay, you have probably heard the phrase boot your computer, but you do not know what this means. Booting is the process that occurs when you press the power button to turn your computer on. During this process, which takes a minute or two, the computer does several things. क्या क्या करता है? जब भी तुम लोग शट डाउन करके चालू करते हो पीसी, या फिर तुम लोग जब भी मोबाइल रीबूट करके चालू करते हो, तो एक्चुअल में क्या होता है? इट रन्स टेस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग क्लियरली, करेक्टली. It checks for new hardware. If then
स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला चीज आपका कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेटिंग पहले सब चीजें करेक्ट है क्या चेक करता है, फिर हार्डवेयर चेक करता है, इज इट रनिंग प्रॉपरली, जो भी तुम लोग का स्क्रीन मॉनिटर जो भी है, सीपीयू वर्क कर रहा है क्या। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे तुम लोग प्लग लगाओगे सीपीयू या कंप्यूटर का, ठीक है, तो तुम लोग का पहले सब मॉनिटर या फिर स्क्रीन वो सब चालू रहना चाहिए। इफ इट इज वर्किंग, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट द कंप्यूटर लुक्स फॉर इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ हाउ इट वर्क्स, 3 थिंग्स। ठीक है, तुम लोग का IPO दैट इज योर ऑपरेटिंग सॉरी इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो भी तुम लोग का कंप्यूटर रन होने के बाद मेनली computer works in this pattern: input, processing, output. Now input is nothing but the one which you give. ठीक है, for example मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, I want to calculate 20 plus 20, तो मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगी। क्या इंस्ट्रक्शन दूंगी, 20 plus 20 in the calculator, right? तो जो भी मैं दे रही हूँ कंप्यूटर को, मैं इंस्ट्रक्शन जो दे रही हूँ कंप्यूटर को, that is 20 plus 20 is nothing but the input. ओके, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर अपने सीपीयू में क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, मतलब वो कैलकुलेट करेगा, तो उसको वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग। ओके, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी कैलकुलेटर में आपको आंसर डिस्प्ले होगा, दैट इज 40, राइट? सो दैट कम्स अंडर द आउटपुट। ठीक है, सो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, समझ में आया? तुम लोग का इनपुट क्या है, जो तुम लोग इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड कंप्यूटर को देते हो, वो क्या हो गया, इनपुट। जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग। और थर्ड इज उसके बाद जो आंसर तुम लोग को देता है, दैट कम्स अंडर द आउटपुट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ तुम लोग का टर्टल। ठीक है, हम लोग ने लोगो किया था लास्ट ईयर, 3rd स्टैंडर्ड में यू हैव डिड लोगो। ठीक है, द स्टार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, तो उसमें क्या किया था तुम लोग यहाँ पे क्या करते थे, इनपुट देते थे। जो भी सिंटेक्स केस में तुम लोग क्या करते थे, इनपुट देते थे FD50। तो क्या होता था, तुम लोग जैसे एंटर करते थे वो क्या होता था, प्रोसेसिंग होता था। उसके बाद तुम लोग को एक नया स्क्रीन रहता था जहां पे वो टर्टल फॉरवर्ड होता था 50 स्टेप्स, right? So that is nothing but input, processing and output, right? Okay, so now जैसे आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है, वैसे आपका डिवाइसेस भी है। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अभी क्या क्या है, जिसके थ्रू आप टाइप करते हो। ठीक है, आप किसके थ्रू टाइप करते हो, आपका कीबोर्ड, right? You use your keyboard. The one who is not having the keyboard, आप क्या करते हो, मॉनिटर में स्क्रीन लाते हो। ठीक है, कीबोर्ड स्क्रीन, तो उसके लिए आप कैसे करते हो, माउस पॉइंटर यूज करके टाइप करते हो। सो योर इनपुट डिवाइसेस आर नथिंग बट योर कीबोर्ड एंड योर माउस। ठीक है, विथ विच यू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, राइट? नेक्स्ट वन, प्रोसेसिंग। जैसे आपका इनपुट हो गया तो आपका कंप्यूटर, आपका जो भी कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन किसको देता है, पहला सीपीयू में जाता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर वो बाइनरी जो भी है उसका मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। तुम लोग यू राइट इन योर बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, right? It does not understand your language, that then converts it into the machine language in the CPU. उसके बाद वो क्या करता है, फिर वहां से जो वायर जाता है CPU मॉनिटर में, वो क्या करता है, तुम लोग को आउटपुट डिस्प्ले करता है। ठीक है, फर्स्ट कीबोर्ड से लेके तुम लोग का
नेक्स्ट आपका कीबोर्ड से लेके आप कहाँ पे जाते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो इन योर, wait, first you give the instruction to the CPU, sorry, to the keyboard, right? Then what happens, it goes to the CPU. ठीक है, CPU में जो भी वो बाइनरी जो भी है कन्वर्जन करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड देन इट गोज टू द मॉनिटर, दैट इज इट डिस्प्लेस. ठीक है, वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है आपका आउटपुट. फाइन. So that was all about your operating system, your hardware, software, your input processing, output, and your computer. ठीक है, I hope this is clear to all of you, right?